Hello students, today I am going to teach you class 9 physics first chapter motion. I have shared one lecture before also about this chapter to tell you about the distance and displacement. आज उससे आगे की बात हम यहाँ करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे स्पीड की, आज हम बात करेंगे वेलोसिटी की, आज हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की। सो स्टूडेंट्स, रेडी फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिज़िक्स जो आपको कंपटीशन तक बहुत काम आने वाला है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ covered by your body, and displacement the difference between initial position and final position. I have told you also uniform motion and non-uniform motion. I am repeating once again. A body is said to be in a state of uniform motion if it travels equal distance in equal intervals of time. अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करें तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होकर स्ट्रेट लाइन होता है। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, किसी भी बॉडी को आप अर्थ से ऊपर लाकर जस्ट उसे अगर आप फॉल करा देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसे फ्री फॉल कहते हैं। ये अर्थ के एक्सीलरेशन में ड्रॉप होती है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो हमेशा वो एक कर्व लाइन होगी, आइदर बेंड टुवर्ड्स टाइम एक्सिस और आइदर बेंड टुवर्ड्स द डिस्टेंस एक्सिस। सो इसके बाद हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई हैव डिफाइंड यू once again. The path length between the initial and final positions of particle gives the distance covered by the particle, and the minimum distance between the initial position and final position of a body during that time interval is called displacement. Distance and displacement because of length, so we measure in the SI system, the unit is meter. A very important again, distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. I have told you what is the difference between distance and displacement, so I think it is not to repeat. Just I would like to tell you the. So students, we will see first example. A person travels a distance of 5 meter towards east, then 4 meter towards north, and then 2 meter towards west. We have to calculate total distance traveled and the resultant displacement. So as you know what is distance, the actual length covered by your body, we will add all the distances. 5 plus 4 plus 2 equals to 11 meter. Now we have to calculate the resultant displacement. So what we are doing here, the distance is given in meter, so we will just assume 1 meter equals to 1 centimeter. So according to the question, 5 meter equals to 5 centimeter, 4 meter equals to 4 centimeter, and 2 meter equals to 2 centimeter. So first of all, 5 meter towards east, we move A to B 5 meter towards east, then B to C north 4 meter towards north, and C to D 2 meter towards west. So when we calculate this, the displacement is √3 upon √4 का √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर और उन सब का होल स्क्वायर. This is the resultant displacement, which is quite different from the distance traveled. Another example, we can see a body is moving in a straight line and distance versus time graph is given. So in this question, we have to calculate displacement of body in first 2 seconds and total distance traveled in 7 seconds. So displacement of a body in first 2 seconds, as you know, body goes from A to B or O to B actually, which is 40 meter.
Now we have to calculate the displacement in 7 seconds. So because the body is changing their speed, so we have to bifurcate it. From A to B we have to calculate B to C, then C to D E करके. Then displacement of body in first 2 seconds हमको मालूम था कि 40 था. B to C कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो वो 0 है. इसके बाद आगे के लिए हम जब कैलकुलेट करते हैं इट विल गोज टू 80 बिकॉज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड 80 है. और उसके बाद ये धीरे धीरे करके टाइम एक्सेस की तरफ वापस आ रही है और एक सर्टेन 7 सेकंड पर पहुंचकर डिस्टेंस जो स्पीड है वो 0 हो जाती है बिकॉज डिस्टेंस कवर्ड इज 0. सो विच इज़ 80 मीटर. और सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट in 7 seconds is 160 meter. Now what is speed? The distance traveled by a body in unit time interval is called speed. Speed is a scalar quantity. जब इसी स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं वेलोसिटी. द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज जस्ट दिस. स्पीड में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट. सो आप समझ गए होंगे स्पीड में स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज कोई डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन कंपलसरी है. इसीलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड की यूनिट या वेलोसिटी की यूनिट होती है एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में मीटर अपॉन सेकंड और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर अपॉन सेकंड. किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें हमेशा स्पीड कैलकुलेट कराता है बिकॉज आप जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो वी कैन कैलकुलेट. एंड वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमको द एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कैलकुलेट कराता है? डिस्प्लेसमेंट कवर कराता है. ठीक है. अब स्पीड दो तरीके की होती है, एक एवरेज स्पीड, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड. एवरेज स्पीड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द टोटल टाइम टेकन. जितनी भी टोटल डिस्टेंसेस कैलकुलेट की गई हैं सपोज L1, L2, L3, L4 और टाइम लगता है T1, T2, T3, सारी डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सारे टाइम इंटरवल्स को ऐड कर दीजिए. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी है. आप जानते ही हैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है. सिमिलरली एवरेज स्पीड स्केलर है और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है. लेकिन कभी भी एवरेज स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती. वेलोसिटी हो सकती है लेकिन एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. और एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकती है जब बॉडी इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, देयर इज नो डायरेक्शन चेंज, सो इट कैन बी इक्वल. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड in a certain direction then average speed can be equal to the average velocity. Now जैसा मैंने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सारी डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन. एक तो अगर टाइम गिवन है क्वेश्चन में तो आप सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक पोर्शन का, दूसरे पोर्शन का, तीसरे पोर्शन का, सबको ऐड कर दीजिए और फिर कैलकुलेट कर दीजिए. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या पर्टिकुलर सेकंड पर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड. अगर हम ग्राफ खींचें तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा. और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है या अलग अलग सिमिलर डिस्टेंसेस अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में करती है तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ या तो इस तरीके से आएगा या फिर इस तरीके से कर्व आता है. नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू कैलकुलेट द
average speeds. We have given the distance between 2 points A to B. Suppose there is a 2 points A and B, and the distance between A and B is 100 meter. And when a body is going from A to B, the speed is 20 meter per second and in first, and whenever it is returned B to A, the speed is 25 meter per second. Now we have to calculate average velocity. So I have told you average velocity equals to total distance upon total time. The time is not given, so we will calculate the time first. In first from A to B डिस्टेंस थी हमारी 100 मीटर और उसका वेलोसिटी थी 20. तो फर्स्ट में टाइम टेकन हो गया आपका 5 सेकेंड्स. सेकेंड में डिस्टेंस तो सेम थी 100, बट स्पीड चेंज हो गई थी या वेलोसिटी चेंज हो गई थी. 25 मीटर पर सेकेंड हो गया था, तो टाइम टेकन हो गया 4 सेकेंड. तो पूरी जर्नी का टाइम टेकन 5 + 4 = 9 सेकेंड्स. सो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल डिस्टेंस 200 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 22.2 meter per second. So by this you can calculate this. I will post the notes, so you can take some examples more. If you have any problem, then you can contact me on my WhatsApp number. WhatsApp number तो आपको मालूम ही है, 9759226664. I repeat, 9759226664. या WhatsApp में मैसेज डाल के भी क्वेश्चंस की क्वेरी पूछ सकते हैं. Now we will talk about acceleration. There are two types of acceleration, uniform and non-uniform. First we will describe acceleration. Rate of change of velocity, कितनी देर में कितनी velocity change हो गई, that is known as acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration. A = v - u upon t. The unit, because velocity का टाइम के संग रेशियो है, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, टाइम की सेकेंड, तो देयरफॉर मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. अब एक्सीलरेशन भी दो तरीके का है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाई इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और वेलोसिटी इंक्रीज का जो रेशियो है वो इक्वल टाइम में है, इक्वल अमाउंट में, तो होगा यूनिफॉर्म मोशन, जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी है. और अगर इनमें से कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, बिकॉज v - u हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है. इफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सीलरेशन अकर्स, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा. ओके, सो just I am explaining an example. Time velocity graph of a body is shown in the figure. This is a time velocity graph. As you are saying, the hours is 1 2 3 4 and the maximum velocity is 80. Now what we have to calculate, find its acceleration in meter upon second square. जब टाइम t = 0 था तब आप देखेंगे स्पीड थी 20, पहले से था, ठीक है ना. और जब टाइम 4 सेकेंड हो गया तो स्पीड हो गया 80. So what is acceleration? Change in velocity upon time interval. What is change of velocity? 80 - 20, v2 - v1, and time 4 - 0. This is 15 meter per second square. So by and large, there is another example I am just telling you. Time velocity graph of a particle is shown in the figure. This is another example. Find instantaneous acceleration at following intervals. So instantaneous acceleration calculate करना है अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर. So how we will calculate? हमको कैलकुलेट करना है 3 सेकंड पर, 6 सेकंड पर और 9 सेकंड पर. फर्स्ट we will see at 3 सेकंड. At the 3 सेकंड how we will calculate? 3 सेकंड पर आप देख रहे हैं
जो स्पीड है वो है 60 एंड ए टू बी पर क्या हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। टाइम तो चेंज हो रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो आप जानते हैं जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो क्या एक्सीलरेशन होगा? नहीं होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन होने के लिए स्पीड का चेंज होना कंपलसरी है। तो फर्स्ट पोर्शन में स्पीड चेंज नहीं हो रही, इसीलिए हम एक्सीलरेशन हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। स्लोप नहीं है वहाँ पर, लाइन 0 है, इसीलिए एक्सीलरेशन 0। अब हम 6 सेकंड पर देखते हैं स्टूडेंट, 6 सेकंड्स। नाउ 6 सेकंड पर आप देखते हैं जब हम पैरेलल डालते हैं तो ए टू बी तो कोई एक्सीलरेशन था ही नहीं, ये फिर सिर्फ होगा बी से लेकर 6 सेकंड तक। तो बी से 6 सेकंड तक वेलोसिटी चेंज हुई है 60 to 80 और टाइम इंटरवल है 2। देन वी विल कैलकुलेट दिस, आई एम जस्ट शोइंग इन दिस। BC 100 minus 60 and time 8 minus 4, 6 seconds. So this is minus 10 meter per second square. And third one हमको 9 सेकंड में कैलकुलेट करना था। Similarly 0 minus 100 upon 10 minus 8. So I am just ending this video at this note. Just listen this lecture again and again and watch our channel regularly. अपने आइडियाज़ भेजिए, अपने सजेशंस दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम भी आप शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको जैसा बताया था कि हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कल्हाय एजुकेशन। You will find each and every solution in this channel. We are going to start social study and mathematics also in some time. So like the channel, subscribe the channel. Thank you.